السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. یہ حدیث جو نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو، یہ ترمذی کی ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے. انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہمیں پڑھنا ہے، نیکسٹ کلاس ہمارا جو آج کا جو کلاس ہوگا وہ میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہمارے نظر سے گزرا ہوا ہے، تو کوشش کرتے ہیں اس کو گرامیٹکلی ایک بار اینالائز کرنے کے لیے. تو شروع کا جو لفظ ہے یہ من کون کے معنی میں آتا ہے؟ جو کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو کے معنی میں، یہ شرط کے معنی میں آتا ہے جو. اس کے بعد آپ کو دکھ رہا ہو 3 حروف دکھ رہا ہوگا، تینوں پہ زبر لگا ہوا. من کون بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ اسماء استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا اس دن 10 اسماء استفہام پڑھا تھا ہم نے جو. تو کاف پہ زبر ہے، را پہ زبر ہے اور حمزہ پہ زبر ہے، تو ہمیں دکھ رہا ہے قرأ. یہ فعل ہے، تو قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا. تو کیا معنی ہو گیا؟ کاف، را اور الف کو استعمال کرتا، عرب پڑھنے کے استعمال کرتا، تو اس کا کیا لفظی معنی ہو جائے گا؟ اس نے پڑھا، ہے نا، اس واحد نے پڑھا. تو اگر ہم اس کو لفظی ترجمہ کریں تو ہوگا جس نے وہ پڑھا. کیا پڑھا؟ حرفن یہ واحد ہے، اور حرفن کا معنی ہو گیا ایک حرف. یہ ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے یہ حرفن کیا ہے. لیکن میں ابھی جسٹ اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے رہا ہوں. اس کا ترجمہ جب کریں گے تو من قرأ، جس نے پڑھا ایک حرف. ٹھیک ہے، من یہ کون سا حرف ہے؟ یہ حرف جر ہم نے پڑھا تھا. من ان دونوں کا معنی سے ہوتا ہے. من سے کتاب اللہ. اب یہ کتاب زیر میں کیوں ہے، زر کی شکل میں کیوں ہے، مجرور کیوں ہے؟ وہ من کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. تو من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. اب اس کو مکمل ترجمہ کریں. من جو پڑھا. اب اس کو ہم یہاں تک اینالائز کر پا رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک یہ لائن ہمارا مکمل ہو گیا، لگ بھگ یہاں بچا ہوا ہے. تو اب ہم اس کو یہاں سے اینالائز کریں گے. من قرأ، جس نے پڑھا حرفن ایک حرف، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. فلہو، فا پھر کے معنی میں آتا ہے، تو پھر اس کے لہو، لا حرف جر اور ہو اس کے لیے. فلہو پھر اس کے لیے ہے، بھی اس کے ساتھ، حسنتن ایک نیکی. یہ واحد ہے، حسنتن ایک نیکی. اور اس کے بعد وہ حدیث کا اگلا الفاظ یہ ہے، والحسنۃ پڑھیں گے ملا کر کے، اور والحسنۃ. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں یہاں پہ حسنتن پہ 2 پیش ہے، چونکہ یہ معرب باللام نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، یہ نکرہ لے کر آیا ہے. یعنی کوئی بھی حرف جب نکرہ آئے نا تو اس میں کوئی بھی حرف کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایک حرف اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہے کیا ہے؟ ایک نیکی. والحسنۃ دیکھیے معرف باللام لگنے کی وجہ سے وہ 2 پیش ایک پیش میں تبدیل ہو گیا. والحسنۃ اور وہ ایک نیکی، بعشر امثالھا اس کے جیسا 10 نیکی کے برابر ہے. وہ بعشر امثالھا، ہاں حسناتوں کی ضمیر کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ نیکی. عشری کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، عشرہ مبشرہ کے معنی میں آتا ہے، یہ 10 کے معنی میں آتا ہے عرب میں. امثالی یعنی 10 نیکی کا برابر ہے. یہاں تک ہم نے ترجمہ کر لیا الحمدللہ. اس کے بعد آتے ہیں، دیکھیں یہ لا نفی جنس، لا اقول، اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا ہے فعل مضارع. یہ ہمارا فعل مضارع ہے جو ہمارا آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں پڑھنے والے ہیں. لا اقول، اور نہیں میں کہتا، میں ہرگز یہ نہیں کہتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہتا الف لام میم حرفن، کہ الف لام میم ایک حرف ہے. ولیکن بلکہ میں کہتا ہوں الفن حرفن، کی الف ایک حرف ہے، ولام حرفن لام ایک حرف ہے، ومیم حرفن اور میم ایک حرف ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی، یہ ہمارا مکمل ہو گیا اللہ کے فضل سے. اب ہم اس لائق بن چکے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث کو ہم خود بخود ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو گرامٹکلی اینالائز بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا 25 سے 27 دن کا جو کلاس ہوا ہے ہمارا، اس کا بینیفٹ ہمیں یہ مل رہا ہے. ایک بار پھر کر دیں، ٹھیک ہے چلے.
देखिए यहाँ शुरू देखें, यहाँ ये जुमला शर्तिया है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसको बाद में जाकर पढ़ेंगे। इसका माना मैं बता दे रहा हूँ। जिसमें के माने में आता है, जो के माने में आता है, ठीक है। जो करा, ये पहला सीगा है हमारा, फेल का पहला सीगा है, तो गर्दान का पहला सीगा उसने यानी वाहिद के बारे में आता है। तो लफ्जी तर्जुमा हो गया जो उसने पढ़ा, यानी उसने जो पढ़ा, या फिर नॉर्मली इसको हम अपनी जुबान में तर्जुमा करेंगे मुहावरा के तौर पर। तो मन करा, जिसने पढ़ा, हरफन, एक हर्फ। ये हमारा टॉपिक है, इसको गौर कर ले। ये कौन सा हालत में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कौन से हालत में दिख रहा है, ये एराबी हालत कौन सी इसकी, नसब है ना, दो जबर के साथ आखिर में अलिफ है, तो ये नसब की हालत में दिख रहा है, ये हमको देख के ये जहन में बैठा ले इसको। हरफन, जिसने पढ़ा, एक हर्फ, मिन किताबिल्लाही, ये हमारा जार मजरूर, और अगर मिन हटा देंगे तो ये सिर्फ पेश रह जाता, ये पेश रहता, लेकिन मिन की वजह से ये रफा में ना रह करके जर में है। मिन किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब से, उल्टा पढ़ते ना उसको समझने के लिए, अल्लाह की किताब से, जिसने पढ़ा एक हर्फ अल्लाह की किताब से, फलहू, तो उसके लिए है, बिही, उसके साथ, हसनतुन, एक नेकी, वल हसनतु, और वो एक नेकी, बिअसरी अमसालिहा, और वो हा इसकी जमीर की तरफ जा रहा है, ये मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस के लिए जमीर आ गई हा, मिसल है 10 नेकी के बराबर। अल्लाह के नबी आगे फरमाया, ला अकुलु, में हरगिज नहीं कहता, किसी भी एतबार से नहीं कहता मैं, अलिफ लाम मीम, कि अलिफ लाम मीम हरफुन, एक हर्फ है, वलकिन, बल्कि मैं ये कहता हूं, अलिफुन हरफुन, वलामुन हरफुन, वमीमुन हरफुन, बल्कि मैं ये कहता हूं कि लाम एक हर्फ है, सॉरी अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, और मीम एक हर्फ है। तो ये बात आपको याद होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चले हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त ज्यादा लग जाता है फिर, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जुमला इस्मिया, सॉरी जुमला फेलिया चल रहा था हमारा। जुमला फेलिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जिस जुमले की शुरुआत फेल से हो, ठीक है, जिस जुमले की शुरुआत फेल से उसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया, अगरचे वो फेल मुदारे से शुरू हो, चाहे वो फेल माजी से शुरू हो, तो वो जुमला इस्मिया रहेगा। फेल अरबी में कितने किस्म के होते हैं? दो तरह के होते हैं, फेल मुदारे और फेल माजी। फेल माजी हम पढ़ रहे हैं, तो फेल के कम से कम दो कितने अजरा होते हैं? दो अज्जा होते हैं, यानी फेल और एक फाइल। फाइल की अरबी शक्ल क्या होती है? रफा। उस दिन हमने पढ़ा था कि फेल के अंदर फाइल एज ए जमीर छिपा हुआ रहता है, एज ए जमीर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। उस दिन हमने देखा इस जमीर को हमने जाहिर किया, यानी फाइल को हमने जाहिर कर दिया, एज ए नाउन को मेंशन कर दिया, यानी जाहिर कर दिया हमने। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब कभी भी फेल के अंदर फाइल जमीर की शक्ल में हो तो हम वो 14 के 14 सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेकर 14 सीगा हमारा इस्तेमाल हो सकता है बिना किसी झिझक के, अकॉर्डिंग टू जमायर, ठीक है। लेकिन हमने देखा उस दिन कि जैसे ही फेल जाहिर हो जाए, बाई नाउन मेंशन हो जाए, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत गहरा नुक्ता था जिसको गलती किया था बहुत सारे लोगों ने, मुझे जब भेजा था तो वहां पे भी गलती किया था, जो मैंने सवाल भेजा था ग्रुप में उस दिन। तो यहां देखिए आप, जमीर जब फाइल हमारा फेल के अंदर जमीर की शक्ल में हो तो 1 से 14 सीगा हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन जैसे ही हमारा फेल के अंदर फाइल जाहिर हो जाए, बाई नाउन मेंशन हो जाए, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा फाइल मुज़क्कर हो। 4 कब इस्तेमाल करेंगे? चौथा नंबर सीगा, जब हमारा फाइल मुअन्नस हो। अगरचे हमारा फाइल मुज़क्कर हो और मुसन्ना हो या जमा हो, तब भी हम एक ही नंबर इस्तेमाल करेंगे। और अगरचे हमारा फाइल जो हमारा है वो मुअन्नस हो, मुसन्ना हो, वाहिद हो, जमा ही क्यों ना हो, तब भी हम सिर्फ चौथा नंबर ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमने अब तक पढ़ा है। मैं एक जुमला लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, उसको आप समझे। मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, जैद ने हामिद की
मदद की। इसका इंग्लिश लिख देता हूं यहाँ पे मैं, जैद हेल्प्ड हामिद। अच्छा, आप यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ फेल क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे पास 3 हर्फ है, 3 लफ्ज है, मदद, हामिद और जैद। इसमें से फेल कौन सा है, कौन बताएगा? मदद हमारा फेल है, माशाल्लाह। फाइल किसको कहते हैं? जो फेल करने वाला हो, फेल का अमल जो करता है, जो फेल कर रहा है, उसको हम कहते हैं फाइल। तो इस पे ये जो मदद है, मदद करने वाला कौन है? जैद हमारा क्या हो गया? फाइल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें, जैद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प मदद हमारा वर्ब है। अभी तक आपको यहाँ तक 2 समझ में आया। अब आप गौर करें, हमारा फेल मदद है, मदद कर रहा है यानी मजदार है हमारा, काम कर रहा है यानी मदद कर रहा है। मदद करने वाला कौन है? फाइल। हमने फाइल को कैसे पहचाना उर्दू में? इस ने की वजह से। इस ने हमें बताया जो मदद कर रहा है हमारा कौन है? वो जैद है, और मदद की जा रही है तो हमें पता चले नॉर्मल फेल है हमारा। इंग्लिश में हमें कैसे पता चल रहा है कि जैद हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस वजह से कि इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर शुरू में सब्जेक्ट आता है हमारा, जो हमारा फाइल है वो शुरू में आता है, दरमियान में हमारा फेल आता है। अब ये एक नया चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये हामिद भाई, ये जो हामिद भाई है, ये इस जुमले के अंदर नए चीज की शुरुआत हुई, वो है ये हामिद भाई किस एतबार से आ रहे हैं? ये मफूल के एतबार से आ रहे हैं, यानी कि अब जुमला फेलिया के अंदर हमारा एक और नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको कहते हैं मफूल। एक नया पार्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ हमारा जिसको कहते हैं मफूल। मफूल किसे कहते हैं? ये हमारा हो गया मफूल। मफूल किसे कहते हैं? जिस पर फेल वाक़े हो, जिस पर फेल वाक़े हो, यानी जिस पर फेल हो रहा है। अब आप जुमले पे गौर करें तो आपको दिख रहा है कि मदद एक फेल है, करने वाला जैद है, और ये जैद किसकी मदद कर रहा है? मदद जो हो रहा है यानी फेल जो हो रहा है वो किस पर हो रही है? ये हामिद पर हो रहा है, लिहाजा ये हामिद एज ए मफूल आएगा। जुमला फेलिया के अंदर अब एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं मफूल। और इंग्लिश में मफूल जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, वो हमारा लास्ट में आ रहा है। उर्दू में हमने ने से पहचाना फाइल को, की से पहचाना मफूल को, और फेल हमारा नॉर्मल समझ में आ रहा है। इंग्लिश में हमने पहचाना जैद, चूंकि शुरू में आ रहा लिहाजा हमने जैद को सब्जेक्ट करार दिया, दरमियान में हमारा फेल यानी वर्ब, और हामिद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आखिर में आ रहा है। अरबी के अंदर ना तो ने के लिए कोई अल्फाज है, ना तो ने के लिए कोई लफ्ज है, ना की के लिए कोई लफ्ज है, ना ही इंग्लिश की तरह पोजीशन का फर्क है कि वो शुरू में आएगा या फिर आखिर में आएगा। तो हम अरबी के अंदर कैसे पहचानेंगे क्या फोन कौन सा फेल है और कौन सा मफूल है और कौन सा फेल है? ठीक है। तो जिस तरह से हमारा फाइल की एराबी शक्ल जो थी वो कौन सी थी? रफा। ठीक है। चूंकि मफूल भी हमारा इसमें है, फाइल जिस तरह से हमारा इसम था, तो इसम की 3 शक्ल होती है एराबी शक्ल, लिहाजा मफूल की भी 3 शक्ल होगी। तो उस तीसरे शक्ल, 3 शक्ल के अंदर मफूल जो हमारा आएगा वो आएगा नसब के तौर पर। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारा मफूल को एज ए नसब में बैठा देना, मफूल को एज ए नसब में बैठा देना हमें। और जिस तरीके से फाइल चूंकि एक इस्म था, और इस्म 2 तरीके से आ सकता है, जमीर की शक्ल में भी आ सकता है और जाहिर की शक्ल में भी आ सकता है, तो उसी तरीके से मफूल भी हमारा जाहिर की शक्ल में आएगा और जमीर की शक्ल में आएगा। ठीक है। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जाहिर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जाहिर हामिद जो है मफूल है हमारा जाहिर हो गया। अब इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? तर्जुमा करेंगे अब हम, मदद के लिए अरबी इस्तेमाल करता है नसरा, नून स्वाद रा, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे बना रहा, ठीक है, नून स्वाद रा, नसरा हमारा फेल आ गया। अब हमारा फाइल चूंकि जाहिर है
तो हम ये जाहिर का सीगा उठाएंगे और 1 से 4 तक ही इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि हमारा फाइल मुज़क्कर है लिहाजा हम पहला वाला उठा लेंगे, तो नसरा हमारा आ गया, और हमारा फाइल जाहिर है तो हम उसको जाहिर कर देंगे। तो जैद को क्या करेंगे, हम हालत रफा में शो कर देंगे। हो गया नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। मफूल हमारा क्या है, मफूल हमारा है हामिद। हम हामिद को क्या करेंगे, हामिद को हमने नसब में शो कर दिया। तो हमारा जुमला तैयार हो गया, नसरा जैदुन हामिदन, नसरा जैदुन हामिदन, हमारा जुमला सही। जुमला फेलियर के कम से कम 2 पार्ट से। हाँ बोले, क्या बोल रहे? देखें ये हमारा था उर्दू का जुमला, जैद ने हामिद की मदद की। मैंने सिंपल आपसे अगर पूछूं हामिद जैद ने मदद की तो उसका जुमला क्या बनेगा, नसरा जैदुन। नसरा जैदुन क्यों किया मैंने, चूंकि हमारा जो मफाइल था जाहिर हो गया और फाइल को हमने रफा में शो कर दिया। और नसरा यानी हमने गर्दान से पहला सीगा स्टार्ट उठा लिया, क्योंकि हमें पता है जब हमारा फाइल जाहिर हो जाए तो हम सिर्फ 1 या 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुज़क्कर के लिए अगरचे मुसन्ना हो, अगरचे जमाई क्यों ना हो। चौथा मुअन्नस के लिए अगरचे एक ही ना हो, वाहिद क्यों ना हो, मुसन्ना क्यों ना, जमा क्यों ना हो। तो हमने देखा कि हमारा फाइल जो था जाहिर हो गया, तो हमने नसरा उठाया पहला वाला, जैदुन को हमने जाहिर कर दिया और रफा में शो कर दिया। तो हमारा यहां तक जुमला सही हो गया, नसरा जैदुन। हमने देखा ये हामिद साहब मफूल के तौर पर अंदर आ रहे हैं। मफूल किसे कहते हैं, जिस पर फेल वाक़े हो, जिस पर फेल हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि अहमद ने असगर को मारा, तो अहमद फाइल हो गया, यानी मार रहा है, मारना फेल है, और किसको मार रहा है, असगर को मार रहा है। तो लिहाजा असगर हमारा मफूल के तौर पर आ रहा है, यानी जो फेल जिसके ऊपर वाक़े हो रहा है उसको मफूल, और जो फेल कर रहा है उसको हम फाइल कहते हैं। तो हमारा फाइल जो था, और फाइल की एराबी शक्ल कौन सी है, यहां मैंने बता दिया नसब, तो हमने नसब में हामिद को शो कर दिया, बस हो गया, हमारा जुमला सही हो गया, नसरा जैदुन हामिदन। तो हमारा जुमला सही हो गया। अब अगर जिस तरह से मैंने बताया कि अरबी के अंदर किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि आपको यही तरतीब है, लेकिन नॉर्मली तरतीब क्या होता है कि पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल आएगा, उसके बाद हमारा मफूल आएगा। अरबी के अंदर नॉर्मली उसूल यही है। लेकिन अगर कोई इस तरह लिख देता है, नसरा हामिदन जैदुन, तब भी हम पहचान लेंगे और ये जुमला भी सही हो जाएगा। ये जुमला भी सही है। अगर मफूल को बीच में ला दिया, शुरू में ला दिया गया, तो भी जुमला सही है, और मफूल फाइल को बाद में ला दिया गया, बोले नहीं कैसे होगा। हामिद जो था, जो मदद करता है मफूल, वो तो हमारा नसब में, और हम फाइल को और मफूल को पहचानेंगे कैसे, पहले ये क्लियर कर ले कि फाइल को और मफूल को पहचानेंगे कैसे। फाइल जो हमारा है वो हमेशा रफा में रहेगा। तो आपको इस जुमले के अंदर रफा कौन सा दिख रहा, जैद दिख रहा, अगर से आखिर में आ रहा, वो आखिर और पीछे का टेंशन में मत जाए, क्योंकि अरब ये काम करता है, मैंने उस दिन ही बताया, तकदीम और ताखिर वो कर देते हैं। मुब्तदा को बाद में भी लेकर आ जाते, खबर को पहले लेकर आ जाते, कभी मुताल्लिक को बीच में ला देते हो, खबर को बाद में ला देते, तो इससे आप टेंशन में ना आए। तो अरब क्या करता है कि बाज दफा फाइल को शुरू में ना ला करके मफूल को शुरू में ला देता है। ठीक है, हमें पहचानना एराब के जरिया, हमें एराब पक्का करना है, बस इतना ज़हन में डालिए, जिसका एराब पक्का हो गया और ज़मायर पक्के हो गए, 90% उसने अरबी सीख लिया, 10% है हमारा सिर्फ वो आपका वो वर्ड मीनिंग जो याद करने को रहता, बस वही चीज, उसके अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं है। हमें ये जैद चुके रफा में दिख रहा है, तो रफा होने की बुनियाद पर ये फाइल है, और हामिदन जो है हमारा ये मफूल के तौर पर आ रहा है, चूंकि ये नसब में दिख रहा है। तो ये पहचान होगी आपकी, नसब और रफा पहचान कराएगी कि कौन सा फाइल और कौन सा मफूल है। तो जुमला हमारा ये नहीं होगा कि नसरा, अगर हम ये कहूंगा, आप ये जो बोल रहे हैं नसरा हामिदन जैदुन की मदद किया हामिद ने जैद की, नहीं, जुमला गलत। मैं इसको पीछे भी लिख दूं या आगे भी लिख दूं, जैद ही मदद करने वाला है। इसको दो और तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर मैं कह दूं हामिदन नसरा जैदुन,
تب بھی یہ صحیح ہے، لیکن اب یہ جملہ اسمیہ نہیں رہ گیا، بلکہ سوری یہ جملہ فعلیہ نہیں رہ گیا، بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ دو تو ہمارا جملہ فعلیہ اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، کیونکہ اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے. لہٰذا اب یہ جملہ اسمیہ رہ گیا، اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہو گیا. لیکن تب بھی اس کا معنی یہی ہوگا، نصر زید حامدن کے معنی وہی آئے گا کہ حامدن نصر زید، یعنی زید نے حامد کی مدد کی. ایک دو ایگزامپل کے میں دیتا ہوں، اس سے آپ کو اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اردو سے عربی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے خود بخود انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، میں اگر کہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، چلیے اس کو ترجمہ کریں، آپ بنائیں. پہلے آرام سے پہلے ہم اس میں نشان کریں گے کون سا مفعول ہے، کون سا فعل ہے، کون سا فاعل ہے. فعل کون سا اس میں؟ پیدا کرنا، یہ ہمارا فعل ہے. ماشاءاللہ. فاعل کون ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ. مفعول کو ہے انسان. فعل ہمارا نارمل اتر جائے گا، یہ ہمارا نصب میں آ جائے گا اور یہ ہمارا رفع میں آ جائے گا. اب ہم جملہ بنائیں گے، فعل لکھ رہیں گے خلقہ، خلقہ آ گیا ہمارا. فاعل کو لے کر آئیں گے، کیا ڈالوں اس کے آخر میں؟ پیش یا زبر؟ پیش ڈالیں گے. ماشاءاللہ. انسان کو لے کر آئیں گے معرف باللام بنا کر کے، انسان. ٹھیک ہے، وہ ملا کر کے لکھ دیا میں نے. ٹھیک ہے، الانسان. تو ہمارا جملہ ریڈی ہو گیا، خلق اللہ انسان، کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. کلیئر؟ ایک اور جملہ بنایا. میں کہتا ہوں چلے حامد اور زید کو لے کے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حامد نے زید کو مارا. حامد نے زید کو مارا. مارنے کے لیے عربی میں استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل ہے ہمارا، یہ مفعول ہو گیا اور یہ ہمارا فاعل ہو گیا. مارنے کے لیے عرب نے استعمال کیا تھا دواد. ہاں، دواد رو عارف، ضربا اور بار. ضربا فاعل ہو گیا، حامدون سوری. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. یہ زید کے بعد میں الف کیوں لگا میں نے؟ زید کے دو زبر کے بعد نصب میں ہے، اور یہ واحد اس میں، اور آخر میں نہ گولتا آ رہا نہ الف اور حمزہ آ رہا، لہٰذا وہ نصب میں وہ الف ڈال دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کر لیتے ہیں ہم، سمپل ہے. لیتے ہیں اسامہ نے پانی پیا. اسامہ نے پانی پیا، فعل کیا ہے؟ پیا. پیا کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ شریبا. کون پی رہا ہے؟ دو پیج ڈالوں یا ایک پیج ڈالوں؟ دو پیج ڈالوں ایک پیج ڈالوں؟ اسامہ تو روزہ کا نام ہے نا. ہم نے تو غیر منصرف میں تو پڑھا تھا کہ وہ عرب مؤنث کے نام جو ہوتے ہیں وہ تو غیر منصرف ہوتے ہیں. تو اسامہ پہ دو پیج ڈال دوں؟ خاموش. اسامہ پہ دو پیج ڈال دوں؟ ایک پیج آئے گا. چلے ٹھیک ہے، ہٹا دیتا. کیوں آئے گا ایک پیج؟ بولتا ہے عرب مذکر کے نام بھی اگر آخر میں بولتا آتا ہے تو اس پہ وہ غیر منصرف اسما کہلاتا ہے. اچھا پانی، الماء، حالت نصب میں ہمارا دکھ گیا. اس کے بعد میں الف کیوں نہیں ڈالا میں نے؟ حمزہ اور الف ایک ساتھ آ رہا ہے، اور دوسری بات الف لام کے ساتھ چونکہ ایک زبر آ رہا ہے، جہاں دو زبر آتا ہے اس کے آخر میں ڈالا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا ایک الف اور حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کے آخر میں آئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آئے گا شریبہ اسامۃ الماء، کی شریبہ
ओसामतुल मा, यानी ओसामा ने पानी पिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा, कोई टेंशन नहीं। कोई सवाल है तो बोले। अब मैं अरबी में कुछ जुमला लिखूंगा और उसको तर्जुमा आप लोगों को करना है। कोई सवाल है तो पूछ ले आप फटाफट। एकदम सिंपल है हमारा। अब जुमला इस्मिया में फाइल के तौर पर हमारा फाइल भी आने लगा, और फाइल हमेशा हमारा नसब में होगा। बस हम नसब में जुमला इस्मिया के अंदर, जुमला फेलिया के अंदर हम नसब में किसी भी इसम को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा फाइल है, ठीक है। और रफा में देखेंगे तो कौन सा क्या होगा, वो सॉरी मफूल होगा हमारा नसब के तौर पर। और अगर फाइल हमारा रफा में होगा तो हम उसे फाइल समझ लेंगे। अब एक चीज बताना भूल गया था मैं आपको। देखिए ऐसा जुमला जुमला फेलिया जिस फेल को मफूल की जरूरत होगी, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए आप ले लो। जिस फेल को मफूल की जरूरत होगी, ऐसे फेल को मुताअद्दी अफ़आल कहते हैं। गौर से सुने, ऐसे फेल जिसे मफूल की जरूरत होगी, ऐसे फेल जिन्हें मफूल की जरूरत होगी, ऐसे अफ़आल को मुताअद्दी अफ़आल कहते हैं। इसको याद रखने के तरीका ये है, मुताअद्दी अमराज, अगर आप जैसे कि ये वाला हमारा, अब आप गौर करें माशाल्लाह, यानी कि मारना एक फेल है, मफूल फाइल जो हमारा है वो हामिद है, और ये मारना जाहिर सी बात है, इसको इस फेल को एक मफूल की जरूरत है ना इसी फेल को। तो ऐसे फेल को, ऐसे जुमला फेलिया को या ऐसे अफ़आल को जिनको मफूल की जरूरत पड़ती है, ऐसे को कहते हैं मुताअद्दी अफ़आल। ऐसे फेल को मुताअद्दी अफ़आल कहते हैं। और जिन फेल को मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं फेल लाजिम। ऐसे अफ़आल को जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे हाँ ये एक अलग से टॉपिक है, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात पूरी यहाँ भी हो रही थी, जैसे मैं अगर कहूँ कि हामिद ने मदद किया तो ना सारा हामिद उन्होंने कह देते ना, जुमला हमारा रेडी हो जाता है। लेकिन बस ये ध्यान में रख ले, ऐसे अफ़आल को जिन्हें मफूल की जरूरत पड़ेगी, ये एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि इस पर एक बहुत गहरा नुक्ता है। गहरा नुक्ता इस एतबार से कि मैं अगर कहूँ तभी तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसको मैं अभी अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह बाद में मौका मिलेगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। लेकिन बस इतना आप समझ लें कि ऐसे अफ़आल को जिन्हें मफूल की जरूरत पड़ती है उसे हम मुताअद्दी अफ़आल कहते हैं, और जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम लाजिम कह देते हैं, ठीक है, फेल लाजिम कहते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं अरबी के अंदर कुछ जुमले लिखूंगा, और जाहिर सी बात है जुमला फेलिया ही होगा। आपको पहचानना है और उसका तर्जुमा आप लोगों को करना है, ठीक है। माइंड को खोल करके बैठे आप। मैं अगर कहूं फेल एक ही ले रहा हूं, मैं एक ही मजदर को लेकर चलूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर होगा, कंफ्यूजन में ना पड़े। मैं नसरा को लेकर ही चल रहा हूं। मैंने कहा नसरा, इसका तर्जुमा किसको किसको आता है? उसने मदद किया। कैसे पता आपको उसने मदद किया? क्योंकि जो हमारा फेल का पहला जुमला होता है उसमें हुआ छुपा हुआ रहता है ना, यानी नसरा उसने मदद किया। अच्छा, अब अगर मैं कहूं नसरा जैदुन, अब क्या जुमला हुआ, इसका तर्जुमा क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, जैद ने मदद की। क्यों जैद ने मदद की? क्योंकि जैद हमारा जाहिर हो गया और हमारे सुपर में दिख रहा है, ये रफा में दिख रहा है। अभी फाइल आया नहीं, अभी सॉरी मफूल आया नहीं अभी। मैं बोला ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एकदम जहन को खोल के बैठे। आपको बहुत चीजें यहाँ पे नुक्ते 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 को, मतलब एक चीज को देख के समझना होगा। ये समझ में आ जाएगा तो आपका मफूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी नसरा उसने मदद किया और ये हुआ जाहिर हो गया।
फाइल की सूरत में जाहिर हो गया, रफा में दिख रहा में नसरा जैदुन यानी जैद ने मदद किया। अच्छा, अब मैं लिखा नसरा जैदन, क्या माना हुआ इसका? जैद मदद किया गया किसके जरिए? ये तो पैसिव वॉइस कर रहे हैं हम, जैद मदद किया गया, ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस की तरफ चल जा रही है, एक्टिव वॉइस है। ये देखिए क्या है, इसका माना क्या हुआ, क्या माना हुआ? जैदुन चूंकि हमारा फाइल था, चूंकि वो रफा में दिख रहा था, हमें दिख रहा था और जाहिर हो गया, तो नसरा जैदुन यानी जैद ने मदद किया। अब आप गौर करें तो यहां तक अगर आप पढ़े तो क्या होगा, उसने मदद किया किसकी, यानी फाइल अब हमारा जमीर की सूरत में नसरा के अंदर छिपा हुआ है, जमीर की सूरत में नसरा के अंदर छिपा हुआ है, उसने जैद की मदद की। देखिए जब फेल आएगा तो लाजिम है कि उसके अंदर फाइल मौजूद होगा, ये जरूरी नहीं है कि मफूल मौजूद हो, लेकिन जब फेल इस्तेमाल होगा तो लाजिम है कि उसके अंदर अगरचे मफूल फाइल हमारा जाहिर ना हो, जाहिर अगर ना हो तो अगर फेल ही सिर्फ क्यों ना हो, 114 गर्दान जो हमने पढ़ा, 114 गर्दान, उसके अंदर जमीर की सूरत में फाइल हमेशा छिपा हुआ रहेगा। जब मफूल हमारे सामने में आ रहा है, जैदन हमारे दिख रहा है, ये रफा में नहीं दिख रहा है बल्कि नसब में दिख रहा है, ये मफूल है, लिहाजा इसके पहले वाले फेल के अंदर एज ए जमीर फाइल छिपा हुआ है, तो नसरा जैदन का माना हो गया उसने मदद की जैद की। यही कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, ठीक है, समझ में नहीं आता? जहन और खोले यहाँ पे, जहन और खोले यहाँ पे, गौर करें लफ्जों पे। अब मैं लिख रहा हूं नसरा जैदन, क्या माना हुआ इसका? गौर करें, गर्दान पड़े, माशाअल्लाह, बस ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना आपको कि उन दोनों ने, अब हमारा जो फेल था वो मुसन्ना के तौर पर आ रहा था, और ये अलिफ से हमने पहचाना कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, हुमा छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, हुमा, और हुमा यानी दो, उन दोनों ने किसकी मदद की, किसकी, जैद क्यों मदद किया जा रहा दिख रहा आपको, जैद की मदद हो रही है, हाँ नसब में, लिहाजा हमने पढ़ा था कि मफूल हमारा नसब में। अच्छा, अब अगर मैं कहूं नसरू जैदन, उन सब ने जैद, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है इसका, ठीक है। एक बार फिर इसको रिवाइज करें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नसरा उसने मदद किया, नसरा जैदुन, इसमें जैद हमारा फाइल जाहिर हो गया, लिहाजा हमने नसरा जैदुन यानी जैद ने मदद किया, हमें बता दिया। नसरा जैदन, तो हमने देखा यहाँ मफूल फाइल, मफूल दिख रहा लेकिन फाइल नहीं दिख रहा, जाहिर नहीं दिख रहा, लिहाजा नसरा के अंदर छुपा हुआ है, हुआ की सूरत में छुपा हुआ है, उसने जैद की मदद की। अब यहाँ दिख रहा है, अलिफ की वजह से हमें दिख रहा, अच्छा यहाँ भी जैदन तो हमें मफूल दिख रहा है क्योंकि नसब में, लेकिन फाइल नहीं दिख रहा, लिहाजा फाइल इसके अंदर छिपा हुआ, पेड़ के अंदर छिपा हुआ। फाइल अगर आपको जाहिर ना नजर आए तो आप कंफर्म समझ लो फेल के अंदर है, वो जमीर की सूरत में अंदर है। अब हमने देखा ये दो मदद, वो उसने, उन दोनों ने जैद की मदद की, हमने जमा लेकर आया नसरू जैदन, उन सब ने जैद की मदद की, उन सब ने जैद की मदद की। अच्छा, अब मैं आगे लेके चल रहा हूं थोड़ा,
नसरतु ज़ैदन, क्या माना हुआ इसका? उस औरत ने जैद की मदद की। जबान पढ़े एक बार नसरा की। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत। माशाल्लाह, तू मैं हूँ, तू मैं है। हाँ, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो अब हमें देखा कि नसर तू जैदन, नसर तू जैदन, मैंने किसकी मदद की? जैद की मदद की। अच्छा, अगर मैं यहां पे पर नसर तू जैदन के बाद, जैदन तो था हमारा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैदुन कर दूं, क्या जुमला बनेगा इसका? क्या तर्जुमा क्या होगा? जैद की मदद की, यानी जैद को मफूल बना रहे, लेकिन जैद तो फाइल हमारा नसब में है ही नहीं। क्यों गलत है? माशाल्लाह, नसरत होना चाहिए था। और अगर मैं नसरत भी कर दूं यहां पर, अगर मैं नसरत भी कर दूं तब भी गलत होगा। जब कभी गर्दान के नंबर 1 सीगा और नंबर 4 सीगा के अलावा कोई भी सीगा आ जाए, कंफर्म हो जाइए कि फाइल उसके अंदर मौजूद है। नंबर 1 नसरा और नसरत, इन दोनों के अलावा 12 के 12 अगर सीगे आ जाएं जुमला फेलिया के अंदर, कंफर्म हो जाओ, फाइल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, फाइल मौजूद है उसके अंदर। किसकी सूरत में? जमीर की सूरत में। तो मैं नसरत कहूं या नसर तू कहूं, ये 14 12 के 12 के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे पता है फाइल अंदर है, तो मुझे फाइल जाहिर करने की जरूरत नहीं है। ये जुमला ही गलत है, ये ज्यादा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इराब ना भी लगाऊं ना, तब भी आप इसको पढ़ते हैं। अगर मैं इराब ना भी लगा तब भी आप पढ़ते हैं नसरत जैदुन, सॉरी नसरत जैदन, उस मुअन्नस ने जैद की मदद की। अब ये जुमला हो जाता उस मुअन्नस ने जैद की मदद की। यही तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक और ले लेते चले। नसरत में आ गया, चलिए इसमें जैदन भी आ गया। अगर मैं कहूं मैंने अराब छोड़ दिया, मैंने अराब छोड़ दिया, अब आप मुझे बताएं मरियम ने मदद की, यानी आपने मरियम को आपने लेकर आया, एज ए फाइल लेकर आया। अगर मैं यहां पर सॉरी एक पेश होगा, अगर मैं यहां पर इसको जबर कर दूं, क्या जुमला बनेगा? उस मुअन्नस ने उस अब आप गौर करने की कोशिश करें कि अरब कितना फसी और वलीद जुबान है कि सिर्फ एक पेश और एक जबर की बुनियाद पर पूरा जुमला बदल जा रहा है। सिर्फ पेश लगने पर यह हो रहा है कि मरियम ने मदद की, और जबर लगने की वजह से रहा तो उस मुअन्नस ने मरियम की मदद की। मतलब एक जेर और पेश मरियम की मदद बदल दे रहा है कि वो कब मदद कर रही है और किसकी उसकी मदद हो रही है। तो आप समझे कि अरब में जेर जबर पेश, हम जो कुरान और तर्जुमा मतलब तजवीद व मखारिज सीखते हैं, वो क्यों सीखते, क्यों जरूरी है कि अगर हमें एक लफ्ज में, अभी मैं आ रहा हूं एक कुरान की आयत रखता हूं आपके सामने में, देखिए सिर्फ पेश और जबर की चेंजेस की वजह से कितनी बड़ी गलती खता कर सकते हैं हम, तर्जुमा में कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। अभी मैं नसरत मरियमा लिखा, तो उस मुअन्नस ने, चूंकि अब इसको मफूल बना दिया, इसको फाइल बना दिया हमने, तो मफूल इसके अंदर छिपा हुआ, तो नसरत उस मुअन्नस ने मदद की, किसकी? मरियम की। और अगर मैं पेश कर दूं तो मरियम ने मदद की। समझ आया? अच्छा, इससे एक और चीज ऐड कर लेता हूं मैं, अगर कहूं आपको, यहां पे लेता हूं, नसरत जुमला क्या है, क्या बनेगा इसका तर्जुमा? नसरत इब्राहिम
کیوں غلط ہے؟ ہاں فائل ہو گیا، ہاں فائل ہو گیا، ظاہر ہے مذکر ہے، چونکہ مذکر ہے، یہ بھی ایڈ کر دیں، لہٰذا ہم اس کو مفعول فائل بنا ہی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو فائل بنا ہی نہیں سکتے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اس مؤنث نے، ہاں 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 یہ ان دونوں نے، اس مؤنث نے، واحد ہے نا، زبر نہیں ہے، یہ ساکن ہے، یہ دیکھیے ساکن ہے، اس مؤنث نے ابراہیم کی مدد کی، چلے، یعنی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے، فعل، فاعل اور مفعول سمجھ گئے ہم، کوئی سوال اس کے اندر نہیں ہے تو پکا؟ اچھا چلے مجھے آپ ایک جملہ بنا کر کے دیں، میں آپ کو اردو میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ اللہ نے انسانوں سے وعدہ کیا، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ نے بتا دے رہا ہوں میں، انسانوں سے وعدہ کیا، وعدہ کے لیے وعدہ ہی استعمال ہوتا ہے جی، تینوں پہ زبر آتا ہے، تو آپ اس کو بنائیں، اس کو جملہ فعلیہ بنائیں، اس کو وعدہ کے لیے وعدہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، وعد اللہ، وعد اللہ، ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی وعد اللہ الانسان، اب انسان کو بدل دیں، انسان کو بدل کے مسلمان کر دیے، مسلمانوں سے، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا، چلے بنائے آپ، وعد اللہ، ہاں مسلمون اگر دے، چلو ٹھیک ہے، چلے المسلمون کر دیتا ہوں میں، صحیح ہے جملہ، صحیح ہے جملہ، غور کرے ہر بڑھانے کی کوشش نہیں کرے، غور کرے، مسلمون، تیل چینج کر لے، چلے کیا، ایک اور بول رہی تھی، کون بول رہی تھی بولے، ایک اور بول رہی تھی، کون بول رہے بولے، مسلمون نسب میں ہونا چاہیے، ہمیں پڑھا ہے کہ مسلمون یہ جمع سالم مذکر کا رفع ہے، اور اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ اینا کی آواز، تو مسلمون نہیں ہوگا بلکہ المسلمین، وعد اللہ المسلمین، اب اگر کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ زبر زیر پیش اعراب ہے تو کتنی بڑی خطا کر سکتے ہیں وہ، اسی لیے میں نے بتانا آپ کو، اعراب اگر سمجھ میں آ گیا اور ضمائر سمجھ میں آ گئے تو آپ کا 80 to 90% عربی سمجھ میں آ گیا، ضمائر اور اعراب کو پکا کرے، چلے ابھی پھر جائے گا آپ کا دھیان، اب اگر مجھے بتائیں، اب چونکہ مسلمانوں سے تو اللہ نے وعدہ کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں سے اللہ سے وعدہ کریں، چلے اب فائل چینج کر دیں، اب مسلمانوں نے وعدہ کیا اللہ سے، چلے ترجمہ کر اس کا، وعدہ ہمارا ویسے کا ویسا ہی رہ رہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو گڑبڑ ہو گیا، گڑبڑ یہ کہ یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، فائل تو رفع میں ہوتا ہے، ہاں تو یہاں تو گڑبڑ ہو گیا، یہ بھی نصب میں، یہاں بھی زبر دکھ رہا ہے، یہاں بھی زبر دکھ رہا ہے، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، فائل تو ایک ہی ہوگا نا،
पेश लगा देते, चले कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो नून के ऊपर जबर दिख रहा है, आखिरी हर्फ पे जबर दिख रहा है और यहाँ भी जबर दिख रहा है, तो हमारा फाइल भी नसब में आ गया, मफूल भी नसब में आ गया, जुमला गलत हो गया। नसब में आ गया ना। हाँ यही तो बता रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं कि जबर की वजह से नसब में, जेर जबर पेश एकदम घटा, ये गलती मत करिएगा कि नसब में, बल्कि हमने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जमा सालिम मुजक्कर की रफा क्या होती है, ऊना की आवाज आती है और नसब अजर ईना की आवाज आती है, मुसन्ना की रफा आनी की आवाज आती है और नसब अजर ऐनी की आवाज आती है। तो अगर मैं अब अगर आपसे सवाल दोबारा करूं कि दो मुसलमानों को अल्लाह ने दो मुसलमानों से वादा किया, तो जवाब क्या होगा? अल्लाह ने दो मुसलमानों से वादा किया, अल्लाह ने वादा फिर गड़बड़, अल्लाह ने वादा किया मुस्लिमानी, ठीक है चलिए मुस्लिमानी लिख रहा हूं, सही है, मुस्लिम नहीं होगा। क्यों मुस्लिम नहीं होगा? नसब में मुस्लिमानी हलफ रफा है, दो मुसलमान के और मुस्लिमानी हालत नसब है, बस यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और अगर मैं कहूँ दो मुसलमान ने अल्लाह से वादा किया तो वादल मुस्लिमीना, सॉरी वादल मुस्लिमैनी अल्लाह अल्लाह, तो अब हमारा जो होगा वादल मुस्लिमानिल, एक मिनट लिख देता हूँ तब भी गड़बड़ हो जाएगा, वादल मुस्लिमानिल अल्लाह, सही है। दो मुसलमानों ने किससे वादा कर रहे हैं? अल्लाह से वादा कर रहे हैं। चलो अब एक लास्ट लाता हूँ, एक लास्ट टॉपिक लाता हूँ, ये लाता हूँ उसके बाद में और एक नया टॉपिक को पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक लास्ट जुमला लिखता हूँ यहाँ पे, मैं अरबी लिख रहा हूँ, आप उसको आप तर्जुमा करें। क्या माना हुआ? उसने मारा, क्या तर्जुमा होगा? दरअबल वालिदैनी, दो लड़के ने दो लड़कों को मारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए, अब अगर कोई कंफ्यूज इस वजह से सोच कर आया कि एराब क्या है, जबर जेर पेश है, तो कभी जिंदगी में इसको नसब मानने के लिए, इसको रफा मानने के लिए तैयार नहीं होगा और ना इसको नसब मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि दोनों जबर में दिख रहा है, जेर में दिख रहा है, तो जहर जबर पेश से कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना हमें। तो अब ये जुमला हो जाएगा जराबा, उसने मारा, अगर सिर्फ दराबा होता है तो, लेकिन अगर बाद में देखना अल वाला दानी आया नहीं, ये कौन सी शक्ल है इसकी? रफा है ना, दो मुसलमान की, आनी की आवाज आ रही है ना, दराबल वालिदानी अल वलदैनी, दराबल वालिदानी अल वलदैनी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या समझ में नहीं है बताएं? अल वलदानी, अलिफ लाम हटा देना, एक मिनट रुके, लड़के हो गलत, एक लड़का दो लड़का, अल लगा दिए, अल वलदानी जराबल, तो यहाँ पे हमारा अल वलदानी है, तो हम मिलाकर पढ़ेंगे जराबल वलदानिल वलदैनी, दो लड़के दो लड़के को मार रहे हैं, यानी मारपीट चल रहा है, हमेशा कुरान की एक आयत लिखता हूं मैं, आप ही इंशाल्लाह करेंगे। चले आप इसका तर्जुमा देखिए, अब आप कुरान खुद तर्जुमा करें, आप खुद कुरान मतलब कुरान की अरबी आयत आप वगैरह लिख रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि दाऊद ने जालूद का कत्ल किया, तर्जुमा करें इसका अरबी बनाया, मैं लिख देता हूं ताकि आसानी पड़े। दाऊद ने जालूद का कत्ल किया, बना, इसका अरबी बनाया, कौन बनाएगा? कतला फाइल है हमारा, फेल है हमारा, सॉरी, कतला दाऊद, आप इस काबिल बन गए हुए हैं कि कुरान की आयत को तर्जुमा भी कर सकते हैं, कुरान की आयत अपनी जुबान में जो आपको याद है उसको आप अरबी में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपने खुद बनाया। अब आप गौर करें कि अगर मैं नौजुबिल्ला यहाँ पे सिर्फ जबर कर दूं और यहाँ पेश कर दूं, कितना खतरनाक माना बनता है इसका।
कितना खतरनाक, कितना जरूरी है। सिर्फ एक हर्फ, एक मतलब एक हरकत को चेंज करने की जरूरत है। अल्लाह ने इस कुरान मजीद की एक हर्फ नहीं बल्कि एक हरकत को भी महफूज रखा है। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं ही बताया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसको हम हरगिज़ बदलने नहीं देंगे, बल्कि इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। तो आप इस काबिल हो चुके हो अब आप, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप ये अरबी की आयत, जो कुरान की आयत है, इसको आपने खुद उर्दू से अरबी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। तो कतला, यहाँ पे भी जबर दे दूं, कतला दाऊद जालूत, फेल फाइल मफूल, समझ में आ गया। फेल किसे कहते हैं? अमल को, काम को, मजदर को। फाइल जो काम कर रहा है, मफूल जो काम करने, जिस पर काम हो रही है। फाइल हमारा किस पर होता है? रबी शक्ल, उसकी रफा होती है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, तो फिर जुबानी याद भी नहीं थी। जुमला फेलिया, हमारा जुमला फेलिया में कम से कम 2 पार्ट था। फेल था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फेल के साथ साथ फाइल मौजूद होता है। किन किन शक्ल में? या तो वो जमीर की सूरत में होगा, या वो जाहिर की सूरत में होगा। क्या क्या पढ़ा हमने सामने रख रहा है। जमीर की सूरत में हुआ तो 11 से लेकर 14 हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ज़मायर। जाहिर हुआ तो हम सिर्फ 1 या फिर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि फाइल जो तो हमारा एराबी शक्ल थी, उसकी रफा थी। इसके साथ हमने नया इंट्रोड्यूस करवाया, मफूल, जिसकी अराबी शक्ल क्या थी? नसब। अभी हमने मफूल को ऐसे क्या पढ़ा? जाहिर पढ़ा। ये जाहिर में ज़मीर के तौर पे भी तो आ सकता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ज़मीर की शरत। जाहिर पढ़ लिया हमने, जाहिर हमने पढ़ लिया, अब ज़मीर की शक्ल में पढ़ेंगे। मफूल किस एतबार में होता है? कौन सी अराबी जात में होता है? मफूल कौन सी अराबी शक्ल में होता है? लिखा हुआ ना, मफूल कौन सी अराबी शक्ल में होता है? ज़मीर इस्तेमाल होगा, कौन सी इस्तेमाल होगी? ज़मायर जो इस्तेमाल होगा मफूल की जगह पर, चूंकि हालत नसब में ज़मायर ये मफूल होता है, तो जब उसकी जगह पर हमने ज़मायर का इस्तेमाल करना है, तो कौन सी ज़मायर इस्तेमाल करना है? हालत मुत्तसिल ज़मायर, ठीक है। इसको हालत रफ़ा, हालत नसब और जर वाला इस्तेमाल करना है। तो फटाफट वो मुझे सुना दो आप लोग, जिसको याद है कि हालत नसब और हालत नसब वाला ज़मायर फटाफट सुना दे, मुत्तसिल ज़मायर सुना दे, किसको याद है? आस्ते आस्ते, 1 मिनट, लिखना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। समझ में आ गया नहीं आता? अब हम ज़मायर के तौर पर पढ़ेंगे उसको। जाहिर सी बात है, मफूल हमारा ज़मीर के तौर पर भी आ सकता है ना। जब नाउन की शक्ल में आ रहा है तो ज़मीर के तौर पर भी आ जाएगा। हाँ चलिए बताएं। हूँ, हुमा, हुम, हाँ 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 हाँ, हुमा, हुन्ना, उसके बाद का, सॉरी, कुम, मरियम बोल रही है। अच्छा वही है तो तो हमने ज़मायर इस्तेमाल कर लिया, कौन सी? हालत नसब वाला। इसकी डिमांड क्या थी? या मुतकल्लिम की डिमांड क्या होती है? या साकिन की डिमांड क्या होती है कि अपने आने वाले सामने, अपने आने से पहले वाले हर्फ को क्या कर देती? जेर कर देती है। मजरूर ना बोले, क्योंकि फिर मजरूर कहेंगे तो फिर किसी के मजरूर जरूरी नहीं कि जेर की शक्ल में हो। तो मैं बता रहा ना, जेर जबर पेश की हालत में ना करे, बल्कि जेर कर दिया बताया, तो जेर कर देती है, लेकिन हालत जर में नहीं, जेर कर देती है। जेर मतलब जेर की शक्ल में ला देती है। लेकिन फाइल ढीठ है, फेल हमारा ढीठ है, फेल इसकी बात नहीं मानता। तो हमने देखा था कि जब इन्ना आया था, इन्ना को इस्तेमाल किया था, तो नून साहब
जो नून जबर वाला था हमारा, नून शद वाला था, उसकी बात नहीं मानता था वो। तो दरमियान में कौन आया था बचाने के लिए, झगड़ा को खत्म करने के लिए? नूने भी आया था, नून साहब आए थे। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी या मुतकल्लिम सिगा इस्तेमाल होगा, तो फेल में जब भी ये इस्तेमाल होगा ज़मीर की सूरत में, तो इसकी शक्ल हमेशा नी की सूरत में आएगा, नी की सूरत में आएगा। बस इसको याद कर लें आप, ठीक है। अच्छा, अब नसरा चूंकि हमारा चल रहा, तो नसरा की गर्दान भी लिखवा दे फटाफट। सही है ना? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरतु, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सवाल करूं अगर कि उन दोनों ने मदद किया, उन दोनों ने, तो हमारा हो गया नसरा। अब अगर मैं कहूं किसकी मदद की, जैद की मदद की, नसरा जैदन, उन दोनों ने जैद की मदद की। हाँ, उन दोनों ने जैद की मदद की। अब मैं इस जैद की जगह पर क्या लेकर आना चाह रहा हूं, जमीर इस्तेमाल करूंगा। तो अब क्या होगा, अब हम चूंकि जाहिर सी बात है ये नसब पर इस्तेमाल करेंगे, तो जैद के लिए क्या इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक काम कर ले, इसको काम कर दे, दो नहीं करते, इसमें एक चेंजेस है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। नसरा जैदन, उसने मदद की, यानी उसने एक ने मदद की, किसकी, जैद की, ठीक है। तो नसरा हमारे पास रेडी है, नसरा के अंदर ऑलरेडी हुआ मौजूद है, जैद हूं को ला देंगे तो हमारा हो गया। यहाँ तो यहाँ सीधी पेश में लिखा हुआ, मैं उल्टी पेश क्यों कर दी यहाँ पे मैंने, वजह, यहाँ सीधी पेश है, यहाँ उल्टी पेश क्यों किया मैंने, क्योंकि उसके शुरू में आने वाले, उससे पहले जब भी इस हु से आने वाले पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, तो हु सिंगल पेश को उल्टा कर देती है, ये छोटा छोटा पेश। तो इसका माना क्या होगा, नसर हु, उसने उसकी मदद की। अब देखिए अरबी ये छोटी सी जुबान, मतलब इतना हिस्सा लेता है और उसके अंदर इतना बड़ा जुमला ऐड कर देता है। मतलब अगर हम उर्दू में लिखे तो उसने उसकी मदद की, इतना लंबा उसने नसर के अंदर जोड़ दिया, उसने इतना लंबा उन दोनों का। अच्छा, मैं अगर कहूं अगर मैं कहूं कि उसने जैद की और हामिद की मदद की, दो आगे ना, माशाल्लाह, नसरा हुमा, उन दोनों ने उन दो की मदद की, उन दोनों ने उन दो की मदद की। हाँ 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 हाँ, उसने, हाँ सॉरी, उसने उन दोनों की मदद की। अच्छा, मैं अगर कहूं मैंने जैद की मदद की, तो क्या होगा, मैंने जैद की मदद की, तो हम सबसे पहले अपनी मदद लाएंगे, नसरतु जैदन। अब मैं जैदन की जगह पर वो इस्तेमाल करूंगा, नसरतु हु, मैंने उसकी मदद की, ठीक है। हाँ, मैं अगर आपसे कहूं कि हम सब ने तुम मोहन्नस की मदद की, तो क्या होगा, हाँ हाँ हाँ,
पहले हम सब तो आ जाए, हम सब मदद करने वाले। नसर ना, हम सब ने तुम सब की मदद की। नसर ना कुम। अब अगर मैं कहूं कि हम सब ने उन मुअन्नसों की मदद की, हम सब ने नसरना हुन्ना। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि तुम सब मुअन्नसों ने हमारी मदद की, क्या होगा? तुम सब मुअन्नस ने, कुछ नहीं करना, कुछ लफ्ज एक लफ्ज यहां से उठाना है, एक लफ्ज यहां से उठाना, एक लफ्ज यहां से उठाना। नसर न तुन्ना, नसर तुन्ना हो गया हमारा। नसर न तुन्ना नहीं, नसर तुन्ना, नसर न तुन्ना ना। अब इसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है। नसर तुन्ना ना, नसर तुन्ना ना, नसर तुन्ना ना, नसर तुन्ना ना। लेकिन हमें पढ़ना, जाहिर सी बात है। अब हमें इसका माना क्या लेगा? नसर तुन्ना यानी उन लोग, तुमने, तुम सबने मदद की, किसकी? ना, हम सबकी। ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दूं मैं, बस और कुछ नहीं है, बस और 5 मिनट इंशाल्लाह लूंगा, बस ये इसको खत्म कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। कुछ नहीं करना है, एक यहां से उठाना है, प्रैक्टिस करना है, एक यहां से उठाना, एक यहां से उठाना, एक यहां से उठाना, एक यहां से उठाना, बस मिक्स करके बनाते रहे जुमला। अच्छा, एक जो है हमारा, अगर मैं अब कहूं आपको, हाँ चले, मैं या वाला मुतकल्लिम वाला भी डाल देते हैं हम, चले उसको भी कर देते। तुमने, तुमने मदद की मेरी, तो क्या हो जाएगा? नसरता, तुमने मदद किया, तुमने, तुमने मुज़क्कर करे मुअन्नस करे कुछ भी। नसरतनी, तुमने मेरी मदद की। और अगर मैं ज़ेर कर दूं, नसरतीनी, तुम मुअन्नस से मेरी मदद की। मैं आता हूं कुरान की आयत लिखूंगा, उसको भी क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम सब ने मेरी मदद की, क्या होगा? तुम सब ने, तुम सब ने, तुम सब ने मदद कर, फिकर मुज़क्कर को दिया करें, यहां से उठाए नसर तुम, नसर तुम नहीं, तुम सब ने मेरी मदद की, नसर तुम नहीं, तुम सब ने मेरी मदद की। क्लियर कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं करना, बस यहां से एक तो उठाना, यहां से उठाना, चेंजेस कहां आएगा? एक चेंजेस आएगा। अब अगर मैं कहूं नसरू, उन सब ने मदद की, नसरू जैदन, उन सब ने जैद की मदद की, तो अब मैं जैद की जगह पर क्या इस्तेमाल करूंगा? नसरू हूं है ना। अरब ऐसे नहीं लिखता, एक्चुअली हमारा कायदा सही था, लेकिन अरब ऐसा नहीं लिखता। अरब क्या करता है? इसके दरमियान से अलिफ को हटा देता है, तो हमारे पास जो जुमला आएगा, वाव का ऐड कर दे, और वाव पे चूंकि साकिन था तो ये नॉर्मली आएगा, नसरू हूं, नसरू हूं। नसर तुम को उठाते हैं हम, यहाँ मिटा दे, एक मिनट हो गया। नसर तुम, नसर तुम, नसर तुम, उसकी मदद की, तो ऐसे होगा ना जी, नसर तुम हूं। लेकिन अब उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, खुद अजीब सा लग रहा है, नसर तुम हूं, मटक रहा दरमियान में, चूंकि लफ्ज को पढ़ते वक्त ना अरब रुकता नहीं है, उसको मिलाता फ्लुएंट है वो, तो क्या करता है? नसर तुम हूं नहीं पढ़ करके वो ऐसे नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? वाव को दरमियान में दाखिल कर देता है पेश के साथ, और उसको शुरू कर देता है, नसर तुम हूं।
وہ درمیان میں کیا کرتا ہے, وہ کو داخل کر دیتا ہے اور فلوئن کر دیتا ہے نصرتموہ, نصرتموہ ہو. تو آپ کو قرآن مجید میں یہ آیت بہت بار مل جائے گی, ٹھیک ہے. یہ آپ کو مثال میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے, قرآن کی آیت ہے بہت اچھی آیت ہے, وہ نکل رہا ہے, میں آپ کو گروپ میں ڈال دوں گا. تو وہ کیا کرتا ہے, دو چینجز کرتا ہے. ایک, جب وہ نصرو کو استعمال کرتا ہے تو نصرو کے ساتھ جب کبھی بھی وہ ضمائر کا استعمال کرتا ہے تو وہ الف کو ہٹا دیتا ہے, اور جب کبھی نصر تم کو استعمال کرتے ہیں, چینجز جو ہمارا میں آئے گا وہ صرف یہ نمبر میں آئے گا اور یہ والا میں آئے گا. تو نصر تم جو استعمال ہوتا ہے ہمارا, نصر تم جب استعمال کرتا ہے اور وہ جب اس کا مفعول ضمائر کی شکل میں آئے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ میم کے ساتھ واو کو ایڈ کر دیتا ہے اور ملا دیتا ہے. نصر تموہا, اس نے تم سب نے, نصر تم سب نے مدد کی اس مؤنث کی, تو نصر تموہا, تم دونوں کی مدد کی, ان دونوں کی مدد کی تو نصر تموہا, نصر تموہن, ٹھیک ہے. وہ فلوئنٹ کر دیتا اس کو, بس درمیان میں واو داخل کر دیتا اور اس میں سے الف کو ہٹا دیتا, بس یہی کانسیپٹ. دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ سے لکھواتا ہوں. میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں. تو پہلے ہم یہ لیں گے نا, انا خیرون, اس سے, اس سے, انا خیرون, میں بہتر ہوں. یہ ہمارا کیا ہے, مبتدا, خبر, متعلق, من ہوں, اس سے, میں بہتر ہوں اس سے, انا خیرون من ہوں. قرآن مجید کی آیت تیار ہو گئی. یہ کون کہتا ہے, جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور تمام جنوں کو حکم ہوتا تو ابلیس نے یہ کہا تھا, انا خیر من ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. آگے اس نے کہا, اچھا آپ ہی لوگ کرو, میں نہیں کروں گا, اس کا ترجمہ کرو. تو نے پیدا کیا, تو نے پیدا کیا, کیا ہوگا اس کا جملہ فعلیہ بنا ہے, خلقتا, تو نے پیدا کیا, خلقتا, تو نے پیدا کیا مجھے, چلے مجھے بنائیں, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, من, من الناری نہیں, نارین. عرب ایک کام کرتا ہے, جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ کسی اسم کو نکرہ لے کر آتا نا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی گہرائی چھپی ہوئی تھی. وہ اس کے اندر ایک بہت بڑی بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی مطلب اس کی برائی بیان کرنے کے لیے, اور کبھی اس کو حقیر کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. تو یہاں بھی انار استعمال نہیں کیا ہے, قرآن مجید میں انار کا استعمال نہیں کیا, بلکہ نارین کا استعمال کیا, یعنی نکرہ استعمال کیا. تو اب دیکھیں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, یہ آپ لوگوں نے بنایا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا, من نارین, نار سے یعنی آگ سے, وخلقتہ, تو نے اس کو پیدا کیا, بنایا, خلقتہ من التینی, من تینین, مٹی سی. تو ہمارے پاس تین اللہ کے نبی قرآن مجید کی تین آیت کو ہم نے خود ترجمہ کر کے اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا, اور اب اس لائق ہم ہو چکے ہوئے کہ اللہ کے فضل سے ہم عربی کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کچھ تو ہم قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیت وغیرہ کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ انا خیر منہ یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں, خلقتنی ہم نے ابھی آج پڑھا, من نارین پہلے پڑھ چکے ہیں, جار مجرور ہے, یہ جار مجرور ہے نا جی, حرف جر مجرور. خلقتہ, اس سے پیدا کیا تو نے, من تینین, یہ بھی جار مجرور, من تینین. تو یہ تھا ہمارا الحمدللہ آج کا کلاس. تو کل ملا کر کے ہمارا سمری کیا ہوا کہ ہم نے آج الحمدللہ فاعل فعل دیکھا, جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل اور فاعل ہم نے پڑھا تھا اس دن. جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جس کی شروعات کسی جملہ فعل سے شروع ہو, فعل سے شروع ہو, فعل کے کم از کم دو اجزا ہوں گے, فعل اور فاعل. فاعل ہمارا ہمیشہ اعرابی شکل رفع میں ہوگا. فعل دو طرح سے آئے گا, یا تو ظاہر ہوگا یا تو وہ ضمیر ہوگا. ضمیر کی صورت میں یا تو 1 سے 14 گردان استعمال کریں گے, اور اگر ظاہر ہوا تو 1 یا 4 سوری. ہم نے دیکھا درمیان میں
ایک نیا چیز انٹروڈیوس ہوا جس کو مفعول کے طور پر کہتے ہیں. مفعول کی اعرابی شکل نصب میں ہوتی ہے اور یہ بھی کبھی ظاہر کی صورت میں آئے گا اور کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا. تو ضمیر کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا, ظاہر کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا. بس ہمارا آج کا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ. تو کوئی سوال وغیرہ ہو, نہیں تو پھر ختم کرتے کوئی سوال وغیرہ. چینجز جو آیا تو میں نے چینجز بتا دیا. چینجز دو ہی پہ لاتا ہے وہ. نصرو پہ چینجز لاتا ہے, الف کو ہٹا دیتا ہے. نصر تم میں واو کو ڈال دیتا ہے, نصر تمو کر دیتا ہے, نصر تموہا, نصر تموہن, نصر تموہما, سب کر دیتا ہے. نصر تمونا سب میں ایڈ کر دے گا وہ. جب بھی ضمائر اس کو ایڈ ہوگا, مفعول کے طور پر ضمائر ایڈ ہوگا, وہ اس کو ایڈ کر دے گا. تو کوئی سوال نہیں, انشاءاللہ اختتام کریں, نیکسٹ کلاس کے لیے تیاری کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.